Pakistan and abroad. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس پروقار تقریب میں جہاں معروف اور ممتاز لیڈرز کمیونٹی یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن کا تعلق لیبر سے ہو یا بزنس کمیونٹی سے ہو، معروف اور ممتاز صنعت کار ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ہم آئے ہوئے تمام معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہاں پر ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان بزنس کمیونٹی کی ممتاز شخصیت، لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی، پاکستان کے چیمبر کے حوالے سے سب سے بڑی چیمبر کراچی چیمبر جو کہ پریمیئر چیمبر ہے، آپ اس کے ایز اے فارمر پریزیڈنٹ اور چیئرمین بی ایم جی محترم جناب سراج قاسم تیلی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، تو میں گزارش کروں گا بہت ساری تعلیم استقبال کیجیے گا لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی محترم جناب سراج قاسم تیلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی صاحب، مراد علی شاہ صاحب، چیف منسٹر سندھ ناصر حسین شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، اب میرا خیال سے میں ساروں کے نام لینا شروع کروں تو ٹائم بھی تھوڑا بچ جائے، پھر اگر کسی کا نام نہ لوں تو پلیز اس کو تھوڑا سا درگزر کر لینا۔ جنیدی صاحب، کرامت صاحب، رشید سولنگی صاحب، سامنے بیٹھے ہوئے دوستوں، ساتھیوں، بزنس مین، ڈپلومیٹس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو I would like to congratulate مراد علی شاہ صاحب اینڈ سولنگی صاحب and especially ناصر حسین شاہ صاحب کہ they have done a good job as far as the labor policies are concerned in the past 2-3 months، خاص طور پہ گزشتہ 6 مہینے سے۔ اور obviously امپلائز فیڈریشن مجید عزیز اس کے پریزیڈنٹ ہیں تو he has played a good role in it، اور بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا۔ دیکھیں as far as labor and businesses are concerned، پاکستان میں بہت اونچ نیچ آئی، بہت حالات اونچے نیچے ہوئے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کی پالیسیز جو اب بن رہی ہے اور جس طرح کریکشنز آ رہے ہیں اور ٹھیک ہو رہی ہے، دے آر ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، اگر مجید عزیز اور یہ امپلائز فیڈریشن والے اور بزنس کمیونٹی کے جو بھی ٹاؤن ایسوسیشنز ہیں، خاص طور پہ انڈسٹریل زونز ہیں، ان سب کو مل کے کریکشنز پہ جانا چاہیے۔ اس طرح دیکھیں I tend to agree most of the things which جنیدی صاحب said here، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ جو بات ہے غلط نہیں ہے۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، پاسٹ میں ان جھگڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹیفیکیشن میں 10 دے دوں گا، لیبر لیڈرز 10 دے دیں گے، مے بی some of them we are right, some of them they are right، بٹ آج جب آپ لوگوں نے یہ پالیسیز میں کریکشنز کیے اور ساری جو لیبر پالیسیز تھی اور اتنی ساری جو لیجسلیشن وغیرہ ہوئی ہے، اب اس پہ جینئنلی امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لیڈ رول بزنس کمیونٹی کو ہونا چاہیے۔ اس لیے ہونا چاہیے کہ دیکھیں ان کا یہ گاڑی کے دو پہیے، لیبر کے بغیر ان کی انڈسٹری نہیں چلتی، اور اگر وہ ایمانداری سے اپنی انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں اور جینئنلی چلانا چاہتے ہیں تو اس کو ان کو لیڈ بھی لینا پڑے گا اور ان کو بہت سے کریکشنز کرنے پڑیں گے، اور وہ کریکشنز ٹراپاٹائٹ کے ذریعے جس طرح یہ پروگرام میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اس میں ہونا چاہیے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ آج اس دور میں اب لیبر لیڈرز بھی ایسے نہیں ہے جو زبردستی کے پٹے کریں، یا کوئی انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین بھی ایسے نہیں ہے جو زبردستی سے حق مارے کسی کا۔ ہوں گے اچھے برے لوگ سب جگہ پہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ بزنس کمیونٹی ساری کی ساری ماشاءاللہ آسمان سے اتری ہوئی ہے یا لیبر سارے اترے ہوئے، مگر اب وقت آ گیا ہے ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، خاص طور پہ کراچی کے لیے،
کہ ہم یہ کریکشنز شروع کریں اور اسپیڈی کریں تاکہ جائز ڈیمانڈ جائز حق جس کا ہے اس کو پہنچے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی کا ہو چاہے لیبر کا ہو. اگر ایمانداری سے اس اینگل کو دیکھ کر چلنا شروع کریں گے تو بہت ہی امید ہے کہ زیادہ جلدی سے یہ کریکشن ہو. اور میں یہ امید رکھتا ہوں، ٹھیک ہے یہ حکومت کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، کسی نے یہ کہا، مگر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی یہی حکومت ہوگی سندھ میں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے، میں نے کہا، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ویل ہیو دا سیم چیف منسٹر رننگ دا شو اگین. اب میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں مجید صاحب سے بھی اور جنیدی صاحب سے اور جو بھی اور سیکرٹری لیبر سے بھی اور خاص طور پہ ناصر شاہ صاحب سے کہ یہ کریکٹیو میجرز پہ تھوڑا اسپیڈ اپ کریں تاکہ تھوڑا صحیح معنوں میں دیکھا آپ نے اتنی ساری محنت کی ہے نا، اس کا رزلٹ نظر آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم نے مجید عزیز کو بزنس مین گروپ میں کس طرح سکھایا تھا یا کہ کہاں سے یہ سیکھا. اس نے یہ گولڈ میڈلز تو اناؤنس کر دیے، بٹ ہی شوڈ ہیو اناؤنسڈ فار دا لیبر لیڈرز ایز ویل. اور میں آن ہز بیہاف جنیدی صاحب کو، کراما صاحب کو، ان کا بڑا رول ہے. I announced that he will be giving them as gold medals as well, and if he doesn't want to pay for it, I'll pay for it. مگر اصول دیکھیں، اب ساتھ چلنے کی باتیں کرتے ہو تو پھر ہر طرح سے چلو. مجید عزیز صاحب، I thought we had trained you better. میں مذاق کر رہا ہوں، مذاق کی جگہ پہ ہے. یہ تو یہ بات ہوگی، موقع نہیں ہے، مگر ایک دو تین لائن میں شاہ صاحب سے کچھ ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. کراچی شہر کے حوالے سے، اور یہ جنیدی صاحب آپ لوگ بھی سنیں کہ ہماری تکلیفیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اس وقت سب سے بڑا پرابلم کراچی میں ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے. 7 تو انڈسٹریل زونز میں انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، اور کچھ زونز میں ہاتھ زیادہ اچھا رکھا ہوا ہے، کہیں ہیوی رکھا ہوا ہے، کہیں ڈھیل سے رکھا ہوا ہے، اور کچھ زون کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. اور اس میں 4 انفراسٹرکچر کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک ہے گیس، ایک ہے الیکٹرک، ایک ہے روڈز اور ایک ہے پانی. یہ چاروں کی حالت کراچی شہر کے حساب سے بہت خراب ہے، اور یہ ٹھیک ہونی لازمی ہے. انڈسٹری چلے گی، بزنسز چلیں گے، لوگ آسانی سے سکون سے گھر پہ جا کے سو سکیں گے. اگر بجلی اور گیس ہوگی تو دوسرے دن کام کریں گے تو ایفیشنسی آئے گی. اور اس کے لیے میں شاہ صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا اپنا فوکس زیادہ بڑھا دے. دیکھیں گیس کا بھی جو ریسنٹلی ہوا، کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے بڑا اچھا رول پلے کیا. آپ نے فیڈرل حکومت کے ساتھ جھگڑے کیے، آپ نے یہ سب پریس کانفرنس کی، جو بھی کیا یہ کام کروایا، مگر الٹیمیٹلی رزلٹ یہ آیا اور جو نظر آیا کہ ان کو ایل این جی ہمیں دینی تھی، انہوں نے ایل این جی کمٹ کروا دی یہ الیکٹرک کو. اور آج یہ ساری انڈسٹریوں کو جہاں جہاں ایکسیس یوز ہو رہا ہے لوڈ کا، تو تھوڑا بہت بھی ان کو نوٹسز بھیج کے ان کو ریگولرائز کرانے کے چکر میں ایل این جی دینی ہے. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایل این جی 3 گنا یا ڈبل سے زیادہ مہنگی ہے. وائی شوڈ وی پے فار اٹ؟ 158 آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اس کے تحت سندھ کو سندھ کی گیس ملنی چاہیے. تو اس پہ آپ ایکشن لیں. یہ جو آپ نے اتنی محنت کر کے کہ الیکٹرک سے کام کروا دیا اور فیڈرل حکومت سے گیس دلوا دی، مگر وہ گیس غلط دے رہے ہیں، کہ الیکٹرک کو بھی غلط دے رہے ہیں، تو کہ الیکٹرک کی بجلی مہنگی ہو جائے گی، اور انڈسٹری کے پیچھے پڑ گئے، جہاں جہاں کیپٹیو پاور ہے وہاں پڑ گئے اور یہ کرا رہے ہیں. تو شاہ صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آپ مہربانی کر کے یہ اس گیس کے معاملے کے اوپر یہ نہ سمجھے ختم ہو گیا اور کہ الیکٹرک کو گیس مل گئی. اسی طرح روڈز کا اور پانی کا بھی آج کل بڑا ایشو ہے. پانی نہیں مل رہا انڈسٹریز کو، اور جہاں جہاں مل رہا ہے وہاں ریگولائزیشن کر رہے ہیں، پالیسیز بن رہی ہے، کام ہو رہے ہیں، یا جہاں سب سوائل واٹر کی پالیسیز بن رہی ہے ادھر بھی ایشوز ہیں. I don't want to go into those details, مگر I just made my point. اور میری آپ سے شاہ صاحب یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگلے اس ہفتے کے اندر آپ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو 4 6 8 10 لوگوں کو بلائیں اور یہ 2 3 ایشوز کے اوپر
मेहरबानी करके डिस्कस करके इस पे एक्शन लें। दिस इज ऑल आई वांटेड टू से। इसके अलावा तो बहुत सारी बातें कर सकते थे मगर यह मौका नहीं है। लिए वंस अगेन शाह साहब आपको, नासिर शाह साहब आपको और सोलंकी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर डूइंग अ फाइन जॉब एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो यू विल ऑल मूव इन द राइट डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 years एज वेल। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी मोहतरम जनाब सिराज कासम तेली साहब अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे और साथ ही साथ तजावीज़ भी पेश फरमा रहे थे। ख़वातीन हज़रात, मज़दूरों के इस आलमी दिन के मौके पर अगर हम जिक्र करें उन मज़दूर रहनुमाओं के कि जिन्होंने वाकई में मज़दूर कम्युनिटी के लिए और ख़ास तौर पर मेहनत कशों के लिए काम किया, तो एक वाकई में नाम शहीद उस्मान गनी साहब, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करें। उन्होंने भी मज़दूर के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। आज वो हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके साहिबजादे सईद गनी साहब, उन्होंने भी अपने वालिद मोहतरम के उन्हीं कामों पर चलकर आगे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बासलाहियत लोग हमेशा अपना एक मुकाम बना लेते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मिनिस्टर P&D मोहतरम जनाब सईद गनी साहब से कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद मेरे मौजूद पार्टी लीडर्स, बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स और पंडाल में मौजूद दोस्तों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाज़ा है कि वक्त की थोड़ी सी किल्लत है और शायद आवाज़ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ बैठ के बहुत सारी दोस्तों की बातें समझ नहीं आई। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत मुख्तसरन अपनी बात करूँ। जिस तरह यहाँ जुनैदी साहब ने भी कहा और भी कई दोस्तों ने जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में मज़दूरों के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे अच्छी लेबर पॉलिसीज़ पीपल्स पार्टी ने दी, लेजिस्लेशन पीपल्स पार्टी ने की, इदारे पीपल्स पार्टी ने बनाए और शायद बहुत कुछ और जो इस मुल्क में हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की ही पॉलिसीज़ के नतीजे में हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है या जितना कुछ किया गया है वो अभी भी कम है और इस मुल्क के मज़दूरों को किसी और सियासी जमात से, किसी और हुकूमत से तवक्को भी नहीं है। वो उम्मीद भी पीपल्स पार्टी से रखते हैं और तवक्को भी पीपल्स पार्टी से रखते हैं कि उनके मसाइल भी हल होंगे, उनकी मुश्किलात भी दूर होंगी और उनके जो जायज़ हुकूक़ हैं वो उनको मिलेंगे भी। तो मैं पीपल्स पार्टी का एक कारकुन होने के नाते, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक वज़ीर होने के नाते मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि जितना हमने किया है हमें इससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम नहीं कर सके, लेकिन ज़रूरत इससे ज़्यादा करने की थी। और जो इस मुल्क के मज़दूरों के हुकूक़ हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी सिर्फ पीपल्स पार्टी पर आयद होती है, इसलिए कि इस मुल्क के मज़दूरों की उम्मीद जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। यहाँ जुनैदी साहब ने भी जिक्र किया कि इस मुल्क में बहुत कम मज़दूर ऐसे हैं जिनको ट्रेड यूनियन का हक़ हासिल है और प्राइवेट सेक्टर में वाकई बहुत बुरा हाल है, लेकिन उसके बहुत सारे वजूहात हैं। मैं अगर उसको भी एक तरफ रखूँ तो जो बड़े आपके इदारे हैं, कौमी इदारे थे जो मुल्की सतह पर हैं या सूबाई सतह पर हैं, उन इदारों में जो आपकी बिल्कुल अदमुई किस्म की जो यूनियंस मौजूद हैं उनके साथ भी जो हशर हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। बैंक्स बहुत बड़े इदारे हैं, आज की बैंकिंग की ट्रेड यूनियन तबाह कर दी गई है, बर्बाद कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक कराची में काम कर रहा है, के इलेक्ट्रिक के अंदर यूनियन को ख़त्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। PIA के अंदर जो यूनियंस के साथ हशर हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। स्टील मिल के हमारे दोस्त बैठे हैं, स्टील मिल का जो हाल हुआ है, लेकिन उससे पहले हमारे जो यूनियंस का हाल किया गया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे इदारे जहाँ पर मज़दूरों की तादाद हज़ारों में है, जो यहाँ पूरी कौम को नज़र भी आते हैं, वहाँ जब ट्रेड यूनियंस का हाल बुरा होगा तो फिर हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो इदारे जो लोगों को नज़र नहीं आते वहाँ पर आपकी जो यूनियंस हैं वो मजबूत होंगी या बेहतर हो सकेंगी। यहाँ हमने कोशिश की, मैं शुक्रगुजार हूँ बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का और चीफ मिनिस्टर साहब का कि मुझे उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट में एडवाइज़र रखा और मुझे बहुत फ्री हैंड दिया कि आप यहाँ जाके काम करें और मैंने कोशिश किया था इम्कान कि चीज़ों में बेहतरी आ सके। यहाँ एक चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि इल्ज़ामात हम पे लग जाते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की ठीक नहीं है, लीडरशिप जो है इनकी ठीक नहीं है, इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, ये इदारों को चलाना नहीं चाहते हैं, ठीक नहीं करना चाहते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कम से कम जो मेरा अपना तजर्बा है, मैं चाहे लेबर में रहा या आज मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में हूँ, कोई लीडरशिप की मदाखलत नहीं है,
कोई हुकूमत की ऐसी डायरेक्शंस नहीं है कि आपने काम नहीं करना है, गवर्नेंस ठीक नहीं करनी है। मुझे जो रुकावट आई वो अदालतों की तरफ से आई। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब रोज़ाना जाते हैं, सो मोटो लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं, जब हम कहते हैं जी उनका काम नहीं है, कहते हैं लोगों को पानी नहीं मिलता मैं क्यों ना करूँ, लोगों को सेहत की सहूलत नहीं मिलती मैं क्यों ना करूँ। ये पैमाना ट्रेड यूनियंस और मजदूरों के लिए क्यों नहीं है? जब मजदूर कोई बेचारा अदालतों में जाए तो उसको तो आप कानून के मुताबिक चलाते हैं कि जनाब कानून ये कहता है इस पे चलो, लेकिन जब कोई और मसला आपके सामने आ जाए तो फिर आप कानून को, आइन को एक तरफ रख के, कानून और आइन को एक तरफ रख के आप अवामी मसाइल की बात करते हो। ये अच्छी बात है, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन यही क्राइटेरिया फिर उन लोगों और इदारों के लिए भी होना चाहिए जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ आज जिस तरह बात कही, मजीद अजीज़ साहब ने भी कही, सिराज साहब ने भी कही कि लेबर डिपार्टमेंट बेहतर हुआ है और नासिर शाह साहब की बड़ी मेहरबानी है कि जो एक सिलसिला हमने शुरू किया था उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, काम करने को लोग तैयार नहीं होते हैं। हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी एक फ़र्द के आने या जाने से वो ठीक नहीं हो सकता है, उसको आपको टाइम लगता है। कोशिश की जाती है कोई चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो सकी। एक बड़ा अच्छा प्लान हमने शुरू किया था जिसको नासिर शाह साहब आगे बढ़ा रहे हैं कि हेल्थ और सिक्योरिटी जो है, हेल्थ और एजुकेशन जो है सोशल सिक्योरिटी के थ्रू जो मजदूरों को मिलती है, जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जितना उनका हक है उनको नहीं पहुंच रहा है। हम उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर ये जो मिनिमम वेज की बात की जाती है, हमारे खासतौर पे जो ट्रेड यूनियन के दोस्त हैं वो कहते हैं जी 15,000 16,000 कम है, ठीक कहते हैं, बहुत कम है, उसमें गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन हमारी कोशिश थी कि एक गरीब आदमी की जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो सेहत की अच्छी सहूलत होनी चाहिए, उसके बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हम हुकूमती सतह पर सोशल सिक्योरिटी के थ्रू उनको देना शुरू कर दें तो शायद वो 15 और 16 हज़ार रुपये में अपनी 2 वक्त की रोटी जो है वो आराम से खा सकता है। हमने कोशिश की, लेकिन बहरहाल जो अदालती फैसले आए, मुझे भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई, वो काम हमारा आगे नहीं बढ़ सका। पीपल्स पार्टी ने, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम ज़रा आपका कम, पीपल्स पार्टी ने जो बहुत सारे काम किए उसमें मैं समझता हूँ जो बुनियादी काम था वो सरकारी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को जो उन्होंने शेयर्स दिए और उस इदारे के अंदर उन्होंने उसको हिस्सेदार बनाया, वो एक बहुत बड़ा कारनामा था पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट का। लेकिन बदकिस्मती से इस मौजूदा हुकूमत ने ना सिर्फ ये है कि उसको रुकावट डाली उसमें, बल्कि अब उसको तकरीबन वो ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि अगर किसी इदारे में मजदूर काम करते हैं हम उसको हिस्सेदार बना के उसका जो स्टेक है उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिलजमी से काम करे। उसे ये पता हो कि अगर स्टील मिल, PIA, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक तरक्की करेगा तो उसके अंदर जो मेरा हिस्सा है वो मेरा हिस्सा भी बढ़ेगा और वो दिलजमी के साथ जो है वो काम कर सकेगा। मैं एक और चीज़ यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि हम ख़ासतौर पर रज़ा रब्बानी साहब तो चैम्पियन है इस चीज़ के और हम उनको फॉलो करते हैं, और पीपल्स पार्टी का एक अपना उसूली मौक़िफ़ है कि हम प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोग इसको मिक्सअप करते हैं। मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि हम प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ ज़रूर हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के ख़िलाफ़ नहीं हैं। प्राइवेट सेक्टर जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक वो तरक्की नहीं करेगा, ना हमारे मुल्क की मईशत तरक्की कर सकती है, ना मजदूर तरक्की कर सकता है, ना ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। हम अगर मुखालफत करते हैं तो हम सरकारी इदारों की लूट मार सेल जो लगाई जाती है उसकी हम मुखालफत करते हैं। और मैं आज भी शवायद के साथ ये बात साबित कर सकता हूँ कि इस मुल्क की तारीख में करप्शन का सबसे बड़ा अगर कोई स्कैंडल आ सकता है, आप ये प्राइवेटाइजेशन जो पिछले 20-25 सालों में हुई है इसको उठाकर खोलें, आप दुनिया भर की करप्शन को भूल जाएंगे जो इस प्राइवेटाइजेशन के अंदर हुई है, जिस तरह इदारों को तबाह किया गया है। हमने कोशिश की थी कि सैफरी की कमेटियाँ बनाएं जो शाह साहब ने आगे कंटिन्यू की हैं। उसका मकसद भी सिर्फ ये था कि जितनी बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ लीडर्स हैं या जितने स्टेक होल्डर्स हैं इस शोबे के अंदर, उनको ऑन बोर्ड रखा जाए, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स हों, चाहे वर्कर वेलफेयर बोर्ड के स्कूल्स हों, चाहे आपके इंडस्ट्रियल जोन्स हों, वहाँ जितनी भी काम हो वो तमाम के तमाम आप लोगों के थ्रू हों। हॉस्पिटल्स आपकी ज़ेर निगरानी चलें, स्कूल्स आपकी ज़ेर निगरानी चलें। जो गवर्नमेंट का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है या जो सरकारी अफसरान का रोल है उसको मिनिमाइज़ करें ताकि आप उसको बेहतर तरीके से स्कूलों को और दीगर चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ये हमारी कोशिशें थी, हमने की, लेकिन बहरहाल मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों या हमारी पार्टी की दीगर लीडरशिप हो, मज़दूरों के हुकूक़ के लिए उनके अंदर 1 इंच की भी कमिटमेंट की कमी नहीं आई है जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी। इसलिए हम समझते हैं कि इस मुल्क का मज़दूर सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इस मुल्क का मज़दूर सबसे ज़्यादा तवज्जो का तालिब है। इस मुल्क की ट्रेड यूनियन इस बात की मुतकाज़ी है कि उनकी मदद की जाए, उनको मुस्तहकम किया जाए और ये जद्दोजहद हम बहुत आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब जिस शख्सियत को मैं मदऊ करूँगा वो आज के हमारे मेज़बान भी हैं,
जिन्होंने इससे पहले ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो, लेबर के हवाले से हो, लेबर पॉलिसीज़ के हवाले से हो, और जिस तरीके से मज़दूर रहनुमाओं के ज़िक्र किया उनकी शख्सियात के हवाले से मजीद अजीज़ साहब ने और सिराज कासम तेली साहब ने। यकीनन बिज़नेस कम्युनिटी के साथ आपका एक बेहतरीन रिश्ता है। आप बिज़नेस कम्युनिटी से बेपनाह प्यार करते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी भी आपका बड़ा एहतराम करती है। मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लेबर एंड HR, ट्रांसपोर्ट हो, इंफॉर्मेशन हो, हर तरीके से आपने भरपूर तरीके से खिदमत सर अंजाम दी। मोहतरम जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। काबिले एहतराम सईद मुराद अली शाह साहब, काबिले एहतराम रज़ा रब्बानी साहब, मोहतरम वकार मेहदी साहब, मोहतरम सईद गनी साहब, मोहतरम हबीब जुनेदी साहब, मोहतरम राशिद रब्बानी साहब, मोहतरम करामत अली साहब, मोहतरम सिराज कासिम तेली साहब, मोहतरम मजीद अजीज़ साहब, मोहतरम ज़की साहब, मोहतरम इख्तियार बेग साहब, respected Ingrid and respected Consul General China Mr. Wang Yu, and respected Mr. John G. Robinson from US Consulate, मोहतरम ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मोहतरम जावेद साहब, मोहतरम तारिक मुग़ल साहब, मोहतरम फजल करीम साहब, मोहतरम हिदायतुल्लाह साहब, मोहतरम नवीद साहब, मोहतरम मक्सी साहब, मोहतरम शमशाद साहब, मोहतरम असलम साहब, मोहतरम हाजी याकूब साहब, मोहतरम लियाकत साही साहब, मोहतरम सरकी साहब, मोहतरम जलबानी साहब, मोहतरमा फ़रहत परवीन साहिबा, मोहतरमा नादरा साहिबा, मोहतरम महनाज साहिबा, मोहतरम मदा शाह साहब, मोहतरम मलिक साहब, मोहतरम महताब साहब और दीगर आजिर व अजीर के नुमाइंदगान, मेहनत कशों के जो भी यहाँ पे नुमाइंदे हैं, मेहनत कश यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अफसरान साहब, रशीद सोलंगी, महर साहब, सैतो साहब, प्रेस के नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस तकरीब में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आपकी शिरकत पर शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने आज यहाँ पे शरीक हुए। आज यौम मई है, यानी मेहनत कशों की अज़मत को सलाम करने का दिन, मेहनत कशों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन, मेहनत कशों के साथ तजदीद वफ़ा करने का दिन। मेहनत कश और मज़दूर हमारे वो भाई हैं जो हमारे मुल्क की मुआशी खुशहाली और सनत व पैदावार की तरक्की और फ़रोग़ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो खून पसीना बहाकर इस मुल्क की मुआशी तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। आज शिकागो के शहीदों के साथ साथ पाकिस्तान के मेहनत कशों की शहादतों और कुर्बानियों को याद करने का दिन भी है। आज बल्दिया फैक्ट्री के शहीदों को याद करने का दिन है। आज कॉलोनी टेक्सटाइल मुल्तान के शहीदों को याद करने का दिन है। इसी तरह और बहुत से जिन्होंने इस राह में कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने क़याम से ही अपने मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान पर अमल करते हुए मुआशरे के इस्तेसाली तबकों को इनके हुकूक दिलाने की जदोजहद करती थी। इब्तिदा से ही मेहनत कश तबके की खुशहाली और तरक्की के लिए इक़दामात कर रही है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 10 फरवरी 1972 को पहली कौमी लेबर पॉलिसी का ऐलान करते हुए मज़दूरों की फ़लाह और बहबूद की दाग बेल डाली और इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसी अमल को आगे बढ़ाया और कारकुनान के जायज़ हुकूक के लिए मुख्तलिफ
काविशें की और लेबर से मुतल्लिक कई नई स्कीमें मुतारफ़ की। हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी पिछले उसमें, जिस तरह सईद गनी साहब ने बताया कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने हिस्सेदार बना दिया आम मजदूर को, आम मेहनत कश को। और फिर उसी तसलसल में उन्हीं शहीदों की लेगेसी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौजूदा जो हमारी क़यादत है, उनके विजन के मुताबिक पहली लेबर पॉलिसी जो ट्राइपार्टाइट सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की, वो उसी में चेयरमैन साहब का विजन, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, मेरे भाई सईद गनी और जो हमारे अफसरान हैं, और सब में उसमें मुत्तहद होकर पहली दफ़ा मुत्तफ़िका ये पॉलिसी बनाई, जिस पर हम सब लोग साथ हैं और इसमें बेहतरी ला रहे हैं। जिस तरह पॉइंट आउट किया गया कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए ये ट्राइपार्टाइट मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई गई और उनको नीचे की सतह पर भेजा गया, और जो गवर्नमेंट की उसमें नुमाइंदगी थी उसको कम कर दिया गया, ताकि जो आजिर और अजीर का मसला है वो आपस में प्रायोरिटी पे हल हो, हम सिर्फ उसमें फैसिलिटेटर का किरदार अदा करें। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और मज़दूरों की और मेहनत कशों की फ़लाह और बहबूद के लिए बहुत सी जगहों पे नई कॉलोनीज़, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, और जहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं जिनकी हालत इतनी बेहतर नहीं है, उनको भी रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, और उनका भी अनकरीब काम जो है उस पर शुरू कर दिया जाएगा। बल्दिया साने के जो एक बहुत अहम चीज़ रुकी हुई थी वो भी अब हल हुई है जाके, और उन जो बाहर से पैसे आए थे कोई 52 या 56 करोड़ रुपए, अभी इंग्रिड और हमारे जो भी यहाँ से गए थे उन्होंने इस पे फैसला हो गया, अब उनको लवाहिकीन को, उन मुतासरीन को वो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और वो एक बहुत बड़ा मसला था जो हल किया गया। आप सबके साथ हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं मेहनत कशों की भलाई के लिए, उनकी बहबूद के लिए, जिस पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और हमारे चेयरमैन का विजन और उनकी जो सपोर्ट है, इसके आप देखेंगे कि बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मजदूर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हम सब बड़े खुशनसीबी हैं हम सब की कि वादी महरान को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है जिसने भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। आप एक अवामी वज़ीर आला सिंध हैं और भरपूर तरीके से अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा आज की हमारी इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अच्छा, चलो ठीक है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, सीएम साहब की ये ख्वाहिश थी कि पहले वो ख़ुद करें और फिर रज़ा साहब करें, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि नहीं, वो पहले करेंगे ताकि हमारे मोअज़्ज़िज़ सीएम साहब वो आखिरी ख़िताब करें। तो ख़वातीन और हज़रात, कहते हैं कि रिस्पेक्ट कभी भी डिमांड से नहीं बल्कि कमांड से मिलती है, और वो लोग जो कि वाकई में रिस्पेक्ट अर्न करते हैं तो अल्लाह ताला उनके इस काम में बड़ी बरकत देता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अपने बहसियत चेयरमैन सेनेट के जिस तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दी, आपने यकीनन सब के दिलों में अपना घर कर लिया। आप 18वीं तरमीम के खालिक और मज़दूरों की हमेशा आवाज़ बने। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा फॉर्मर चेयरमैन सेनेट मोहतरम जनाब रज़ा रब्बानी साहब। मोहतरम राशिद रब्बानी साहब से गुजारिश है कि ऊपर आ जाए, स्टेज पे आ जाए प्लीज़। राशिद साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, जनाब वज़ीर मेहनत हुकूमत सिंध नासिर शाह साहब, स्टेज पे बैठे हुए पार्टी के और बिजनेस कम्युनिटी के अकाबरीन, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले क्योंकि आज यौम मई है और शिकागो के मज़दूरों का खराज अकीदत पेश करने का दिन है, लिहाजा इब्तिदा में मैं शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर सिंध और वज़ीर मेहनत सूबा सिंध को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत में सिंध के मज़दूरों के लिए जो कोशिशें और काविशें की और उसके साथ साथ उसको अमली जामा भी पहनाया और असेंबली से मुख्तलिफ कवानीन इस ज़िम्रे में पास भी करवाए। मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस इज्तिमा से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ये सिंध के मेहनतकशों का नुमाइंदा इजलास है, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये लाजिम है कि यहाँ से इस बात की मज़म्मत जाए कि आज यौम मई के दिन इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और वो नाम उनकी शहादत के बाद रखा गया। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर आप दुनिया की एयरपोर्ट्स को देखेंगे तो बहुत से ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पे जो क़यादत, सिविलियन क़यादत शहीद हो गई हो या असैसिनेट हो गए हों, उनके नामों पे एयरपोर्ट रखे गए हैं। न्यूयॉर्क का आइडलवाइल्ड एयरपोर्ट होता था, उसका नाम जॉन एफ कैनेडी या JFK एयरपोर्ट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन के बाद रखा गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग वोट और पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात करते हैं, पहले तो पाकिस्तान में वैसे ही सिविलियनों के नाम पे कम इम्पोर्टेंट इमारतों के नाम रखे गए हैं और जो मौजूद हैं उनको, क्योंकि सिविल एविएशन के कुछ बाबुओं को ये बात पसंद नहीं थी, लिहाजा नया एयरपोर्ट का नाम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक शर्मनाक बात है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। यौम मई की बात, अगर मैं करामत साहब की बात से
आगे बढ़ाऊं कि उन्होंने जो ये फरमाया कि आज शायद 1947 से भी कम आज़ादियां पाकिस्तान के मजदूरों और मेहनतकशों को मिली हुई हैं। मैं ये समझता हूं कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है, और ये अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान अभी तक एक ऐसी रियासत है जो अपनी सिमत और अपनी शनाख्त को तयन नहीं कर सका। पाकिस्तान को कायदे आज़म ने अपनी अगस्त की तकरीर में एक प्रोग्रेसिव वेलफेयर स्टेट के तौर पे तस्वुर किया था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी वफात के बाद पाकिस्तान को एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के अंदर तब्दील कर दिया गया। और जब आप एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन जाते हैं तो उस वक्त आम शहरी के और बिलखसूस मजदूरों के हकूक रियासती सोच के मनाफी होते हैं, और ये लाजिम हो जाता है कि उनको क्रश किया जाए और कर्ब किया जाए। और अगर आप पाकिस्तान की लेबर मूवमेंट की तारीख को उठा के देख लेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि 47 से लेके इब्तिदा से जो छोटी ट्रेड यूनियंस मौजूद थी उनका ताल्लुक बाएं बाजू से था, और रियासत की सोच रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और दाएं बाजू की थी। लिहाजा इब्तिदा से ये लाजिम हो गया कि मजदूर तहरीक को खत्म किया जाए, और जो रही सही कसर बची थी वो ज़ियाउल हक के दौर में ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस और इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर जो मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई गई वो उसमें खत्म कर दी गई। ये उसी दौर का तोहफा है जो हम आज देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सूरत में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि मजदूर तंजीमों की, मजदूर यूनियंस की कुव्वत को जो है वो बांटा जाए और खत्म किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया, पाकिस्तान अब एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां पे पाकिस्तान के मेहनतकशों को, पाकिस्तान की तरक्की पसंद सोच रखने वाले लोगों को कुछ अहम फैसले करने होंगे, क्योंकि पीस मील के अंदर सिंध हुकूमत ने चाहे कितना भी काम किया, लेकिन पीस मील के अंदर लेबर की राइट्स नहीं मिल सकती। लेबर की राइट उस वक्त मिलेगी जब मजमूई तौर पे वफाक के सतह के ऊपर एक कंसेंसस पैदा होगा, और वो कंसेंसस पाकिस्तान की सियासी जमातों को पैदा करना है। उनको इस बात को तय करना है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। कल इस्लामाबाद में एक बड़ी अच्छी बात हुई कि ह्यूमन राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए सियासी जमातें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएं, एक कॉमन एजेंडा प्रिपेयर करें
इसी तरह मैं समझता हूं कि मजदूर हकूक के लिए, ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ट्रेड यूनियंस को मजबूत करने के लिए सियासी जमातों को एक कॉमन एजेंडा पे आना पड़ेगा और आपको, पाकिस्तान के मेहनत कशों को इस बात को परखना पड़ेगा कि वो कौन सी जमातें हैं, वो कौन सी सियासी जमातें हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे मजदूरों की बात करने के लिए तैयार हैं, और वो कौन सी जमातें हैं जो 11 नुकात लेके आती हैं लेकिन उसके अंदर मजदूर की बात जो है वो नहीं की जाती। मैं ये समझता हूं कि सियासी जमातों को इस बात पे भी गौर करना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती से सियासी जमातें भी कॉर्पोरेट बनती जा रही हैं। लिहाजा इस बात को भी गौर करना पड़ेगा कि पार्लियामान के अंदर और सूबाई असेंबलियों के अंदर मजदूरों के अपने नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हों, ताकि वो मजदूरों के लिए गुफ्तगू कर सकें। मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और ये मैं इसलिए निशानदेही करता जा रहा हूं क्योंकि सियासी जमातें अपने इलेक्शन मंशूर तैयार कर रही हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जैसे पहले कहा गया, ट्रेड यूनियंस को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कुचल दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, और उसका सबब सेक्शन 27B है। जब तक सेक्शन 27B को कलादम नहीं करार दिया जाएगा, उस वक्त तक बैंकिंग सेक्टर के अंदर ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं पनप सकती। लिहाजा मेरी गुजारिश होगी बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अपनी जमात से, कि अपने मंशूर में हम ये डालें कि सेक्शन 27B को जो है वो ख़त्म किया जाए और बैंकिंग सेक्टर के अंदर ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ को बहाल किया जाए। आखिर में मसला प्राइवेटाइजेशन का है। प्राइवेटाइजेशन या निजकारी का अमल पूरी दुनिया में फेल हो चुका है, और हमने ये देखा कि बिलखुसूस यूटिलिटीज और सर्विसेज को जहां पे प्राइवेटाइज किया गया वो फेल हुआ, और यहां पे भी जो एक्सपेरिमेंट किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की कि के इलेक्ट्रिक को, KESC जो उस वक्त था, उसको प्राइवेटाइज ना किया जाए, लेकिन एक ना सुनी गई और के इलेक्ट्रिक बना दी गई और उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। और फिर हमने ये देखा कि वो एक्सपेरिमेंट किस तरह बुरी तरह फेल हुआ, और आज हमें ये कहा जाता है कि वफाक ने कराची की बिजली का मसला हल कर दिया, जबकि पैदावार लोड शेडिंग की जो हालिया हुई उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत थी, क्योंकि KESC के अंदर वफाकी हुकूमत के शेयर्स, सुई सदन के अंदर वफाकी हुकूमत के शेयर्स, दो वफाकी अदारे आपस में लड़ रहे हैं और सिंध और कराची के अवाम को जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और एक महीने के बाद वफाकी हुकूमत आती है और कहती है कि जी मैंने छूमंतर करके इस मसले को हल कर दिया। ये मसला अगर वो 1 मिनट में यूं हल कर सकते थे तो
پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر 1 مہینے سے زائد کراچی کے عوام کو لوڈ شیڈنگ کا شکار کیوں بنایا گیا؟ یہ ایک سوال ہے جو کراچی اور سندھ کے لوگ وفاق سے اس کا جواب چاہتے ہیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر ناصر شاہ صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اپنے پروگرام میں کہ میں حاضر ہو کے آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر سکوں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اور معزز خواتین و حضرات، اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بہت ساری تالیوں میں استقبال کیجیے گا ویژنری، انرجیٹک اینڈ ڈائنامک عوامی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب، سید ناصر حسین شاہ صاحب، وقار مہدی صاحب، حبیب جنیدی صاحب، سراج قاسم تیلی صاحب، مسز انگرڈ کرسچنسن، مجید عزیز صاحب، کرامت علی صاحب، ہدایت اللہ صاحب، سولنگی صاحب، یہاں سامنے بیٹھے ہوئے سارے خواتین و حضرات، خاص طور پہ جو یہاں آج لیبر ڈے کے حوالے سے مزدوروں کے نمائندے آئے ہیں، وہ ہمارے میڈیا کے لوگ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جی اے بھٹو۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج لیبر ڈے کے حوالے سے یہاں تشریف لا کے جو سندھ حکومت کا یہ پروگرام تھا انٹرنیشنل لیبر ڈے کے حوالے سے، اس میں آپ نے اپنا قیمتی وقت کچھ دیا اور ہمارے ساتھ یہاں ٹائم بتایا۔ آج کا دن یوم مئی، شکاگو کے مزدوروں کی لازوال قربانی کا دن، آج کا دن محنت کشوں کی عظمت کو سلام کرنے کا دن، آج کا دن محنت کشوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن، اور آج کا دن محنت کشوں کے ساتھ تجدید وفا کرنے کا دن ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج کا دن تقریباً دنیا کے 80 ممالک میں منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اس دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ مزدور جن کی وجہ سے ہماری معیشت کا پہیہ چلتا ہے، جن کی وجہ سے اس ملک میں لوگ، ہر قسم کے لوگ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجدید عہد وفا کیا جائے اور یہ کمٹمنٹ کی جائے کہ مزدوروں کی بہتری کے لیے ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ یہاں سارے مقررین جو آئے تھے انہوں نے ہسٹری بتائی، آپ کو تاریخ بتائی کہ مزدوروں کا جس طریقے سے استحصال اس ملک میں ہوتا تھا، اور اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے مزدوروں کے لیے پہلی بار جو انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس بنایا، مزدوروں کے لیے قوانین بنائے۔ اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خاص طور پہ اپنے دور حکومت میں چائلڈ لیبر اور بانڈڈ لیبر کے اوپر جو قوانین بنائے۔ اس کے بعد جو حکومتیں آئیں، اور یہ میاں رضا ربانی صاحب نے بھی بتایا، باقی مقررین نے بتایا کہ جب بھی آمرانہ دور اس ملک میں رہا ہے، یا وہ حکومتیں
جو आमरों के बलबूते पे बैकडोर से आई हैं, उन्होंने कभी मज़दूरों के हुकूक का ख्याल नहीं किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी जिसने अपने लीडर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इसी साल सिंध पहला सूबा बना, जिसने ट्राइपार्टाइट लेबर पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें मज़दूरों के नुमाइंदे, इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे और हुकूमत, जैसे कि नासिर शाह साहब ने कहा, एज फैसिलिटेटर वो साथ बैठी है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमने ट्राइपार्टाइट लेबर पॉलिसी का ऐलान किया है, इधर मजीद अजीज़ साहब ने भी कहा था, हमारी पॉलिसी अब यही होगी कि उस ट्राइपार्टाइट लेबर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। और उसमें मैं एम्प्लॉयर्स को ख़ास तौर पे कहूँगा कि जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो बजा लाएँ, ताकि इस मुल्क की खुशहाली हो। जब तक हमारा मज़दूर, और इधर कई बातें हुई, सईद गनी ने भी बात की, सईद ने बताया कि जी अगर सिर्फ हम ये अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत बाकी जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है, ये सिर्फ इंश्योर करें कि मज़दूर को उसके बच्चे को बेहतर पढ़ने की सहूलियात मुयस्सर हों और उनको इलाज का सही मौका मिले, तो जो मिनिमम वेज है वो फिर कुछ भी सेट कर सकती है। अदरवाइज़ ये जो 15,000 या 16,000 रुपए से किसी का गुजारा नहीं होता। मैं ये बात इधर आपको बता दूं कि 18वीं तरमीम के बाद मियाँ साहब बैठे हैं इधर, 18वीं तरमीम में उनका किरदार सबको पता है। और ये भी आप सबको पता है कि आजकल जो आवाज़ें उठ रही हैं कि इस 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, अभी ताज़ा जो एक मीटिंग आपने देखी होगी जिससे हम 3 वज़राए आला वॉकआउट कर गए थे, उसकी एक वजह ये भी थी कि उधर बैठे हुए एक वज़ीर, एक मेंबर NEC ने कहा कि जी ये हम सब, जब हमने कहा कि आपने जो है वो रीजनल इक्विटी और बैलेंस डेवलपमेंट करनी है, NEC का मैंडेट यही है, आईन ये कहता है ये 18वीं तरमीम से पहले था। ये मियाँ साहब मैं गलत नहीं कह रहा, कहते ये 18वीं तरमीम से पहले था और उस वक्त कोई और चारा नहीं रह गया। जो लोग अपने आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है, उस मीटिंग में बैठने का कोई जवाब नहीं था, इसलिए हम उठ के आ गए थे। तो अभी भी वो लोग इस 18वीं तरमीम को रोल बैक करने, इसको डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपकी ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहेगी, ये 18वीं तरमीम को रोल बैक करने वाले या इनके ख्वाब देखने वाले, इनके मंसूबे कभी भी मुकम्मल नहीं होंगे। और हम साथ ये जो मुल्क के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे सूबाई खुद मुख्तारी के लिए कदम उठाएं, उनको आगे बढ़ाएंगे, रोल बैक करने की कोई बात नहीं है। मैं उसी हवाले से आपसे कह रहा था कि हमने वर्कर्स वेलफेयर फंड, जो अभी भी फेडरल गवर्नमेंट भी ये कुछ इदारों से ये पैसे ले रही है जो कि गैर आईनी है, लेकिन मैं उन इदारों का ख़ास तौर पर मशकूर हूँ कि उन्होंने, जब हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड के थ्रू कलेक्शन शुरू की, मैं नंबर्स इस वक्त नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ जितना हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिलता था उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा पैसे हमने कलेक्ट किए और ये मज़दूरों पे खर्च होंगे। अगले साल 2 बजट में हम बता चुके हैं कि जी हम बजट 3 महीने का देंगे, मेजर स्कीम्स देंगे, लेकिन एक ब्लॉक उसमें रखा जाएगा जो कि मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए। और मैं ये आपको बता दूं कि पहले जिन सालों में पैसे खर्च किए गए उससे कम से कम 8 से 10 गुना ज़्यादा पैसे हम रखेंगे जो मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए खर्च किए जाएंगे। मैं टाइम काफ़ी हो गया है और मुझे पता है मियाँ साहब ने और नासिर शाह साहब ने एक और इसी के हवाले से एक और तकरीब है, उसमें जाना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ और ये आपके साथ ऐद करके जा रहा हूँ, हमारी इस मुल्क के, इस सूबे के और इस शहर के मज़दूरों की बहुत कुर्बानियाँ हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बल्दिया वाला वाक़या आप सबको
याद होगा। मैं यही रेकमेंड करूँगा, वैसे मैंने कहा है हम अगले साल का बजट तो नहीं दे रहे, लेकिन मैं ये रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि जो शोहदाए थे बल्दिया फैक्ट्री के, मैं अगली हुकूमत जो आएगी उससे अभी रेकमेंड करके जाऊँगा, मैं बजट में भी कहूँगा ये कि उनके लिए जो उनकी कॉम्पनसेशन है या उस सब की तो बात की, लेकिन उसके अलावा उनके लिए हम एक यादगार ज़रूर बना के जाएँ ताकि उनकी कुर्बानी जो कि किसी भी हालत में जो शिकागो के मज़दूरों की कुर्बानी उससे कम नहीं थी, उनको याद रखा जाए। तो मैं ये रिकमेंडेशन करके जाऊंगा। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे डिप्लोमेटिक कॉर से जो लोग आए, द ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी द काउंसिल जनरल ऑफ चाइना, द पॉलिटिकल representative of the United States of America, and Mr. Ingrid, I am grateful that you could come over and join us, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़दूरों की पार्टी है। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैरोकार हैं, हम उनकी बताए हुए असूलों पे चलते हैं, और उन्होंने ही बताया था कि जी इस मुल्क के मेहनत कशों का हमने ख़ास ख्याल रखना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से कि सर बराए मेहरबानी डिस्ट्रीब्यूशन है वेजेस अवार्ड की। मियां रज़ा रब्बानी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि सर सिर्फ चंद लम्हे मज़ीद हैं, और मोहतरम जनाब नासिर हुसैन शाह साहब से कि बराए मेहरबानी सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नासिर शाह साहब से कि बराए मेहरबानी वेजेस अवार्ड के लिए सीएम साहब को, मियां रज़ा रब्बानी साहब को, और मैं जल्द से जल्द नाम पुकार देता हूं ताकि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत सारी तालियां बजाइएगा हमारे इन मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी के लिए जो कि इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। शाह साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से।